Hello, good morning, everyone. Today it's the fourth day of our webinar series. Today we are going to have session on biology. So far we have conducted the sessions on physics, chemistry, and mathematics. So today, to deliver the session on biology, last minute preparation tips and tricks for JEE, NEET, and GUJCET examination. Our today's expert is Dr. Chintan Shah. Before we start, I would like to give introduction about the speaker. Dr. Chintan Shah is having a number of degrees. He is a well qualified, highly educated person. He did his BSc from St. Xavier's College. Then he did his MSc from School of Science, Gujarat University. He did B.Ed and M.Ed with distinction. Then he did advanced postgraduate diploma in business administration. And then he completed his PhD in the year 2019. So he is a continuous learner. He has upgraded his education throughout his life. And recently in 2019, he has completed his PhD. So he is the live example of teacher is a permanent learner. Dr. Chintan Shah is in this teaching field since 2002. So he is having more than 18 years of teaching experience in the field of biology. He is the founder of Explo Funda classes, and he has established his 3 branches in Ahmedabad, Paldi, Satellite, and Naranpura. He is offering coaching from 8 to 12 standard, CBSE board, ICSE board, and state board. His many students have secured very good score in NEET examination, and now they are studying in medical and pharmacy. So he has, so far he has guided more than 5,000 students and throughout his life, and still continue to count thousands of his students. Many students are doctors, dentists, physiotherapists, pharmacists, and teachers, as well as biologists. So with this introduction, I would like to welcome our today's expert, Dr. Chintan Shah. Welcome, sir. Thank you so much, sir, for your nice introduction. And it's my pleasure to be here and to serve the students who are going to serve the nation in even in such a kind of a critical condition. As we know that we have to salute right now all the medical fraternity and doctor, nurse, and all the staff. So it's a pleasure to be with you. And I'm very thankful to you and the whole Ganpat University team who had trusted me to serve over here. Thank you so much. Thank you. So today I would like to ask you that if we can make the chat option open. So, you know, if the students are not using it positively, then we will make it disabled. Otherwise, we will make this chat option today open, but whenever you find it that it's not positively used, then you can definitely disable the chat option. Sure, it's open now. Yeah, thank you so much, sir. May I start now? Okay. Proceed, sir. Yeah. So, hello friends, this is Dr. Chintan Ji Shah, and these are my personal informations. Okay. So these all are my personal information that we will get later on also. And now, how many of you want to achieve high scores in NEET UG 2020 or GUJCET? Just write down in the chat box me, write down ME. How many of you, आप में से कितने लोग बहुत ही अच्छा NEET UG 2020 या GUJCET में स्कोर अच्छा हासिल करना चाहते हैं? Please write down me in your chat box. Yeah, so that you can be active and so that I will also enjoy to be with you. So this is my first question, and yes, thank you so much, Pari, Meeta, then Damya, Shukla, yeah, Vansh, Sakshi, Shah, Bhavna,
Wow, wow, wow. Yeah, Krish, Kush, thank you so much. And here is another question which will definitely pop up your all desires, and that is what? That question is that what is my mission of life? So my mission of life is what? My mission of life is to help the teenagers. So I want to help the teenagers, okay? And I want to help teenagers because I know that the teenagers have to perform very nicely, especially in the 11th, 12th. And my second mission of life is that to fight against uncured diseases like cancer, AIDS, and corona. Now, why it is so? Because when I was in teenage, at that time I lost my father. Okay, so that it was very difficult to handle that situation at that time. That is one of the thing. And other thing is that he is died of because of a cancer. So from that time only I just decided that मेरे जिंदगी का मकसद यही रहेगा कि जो भी डिसीजेस अनट्रीटेड है उसको ट्रीट करेंगे मेरे स्टूडेंट्स, और यही मकसद के साथ मैं जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अभी आपके पास और भी कुछ होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक और ये चीज रहती है कि आप जिंदगी में काफी कुछ कर सकते हैं, लेकिन यही चीज है कि यही 24 घंटे सबके पास रहते हैं। वो 24 घंटे में आप क्या करते हो वो देखने की चीज है। तो आप क्या करते हैं यही देखने वाली चीज है। 24 घंटे ही सबके पास रहते हैं एक दिन में, ठीक है, उसमें क्या आप करते हैं वही देखने वाली चीज है। तो देखिए, that's why my mission of life is what? To help teenagers as well as to treat the cancer like things. So you know that like cancer, AIDS, corona, these इसके ट्रीटमेंट नहीं है, तो मैं श्योर हूं आप सब लोग आगे बढ़ के जिंदगी में यही करेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी ऑफ यू believe that if you succeed in NEET UG 2020, then you and your family members dream come true? आप में से कितने लोग ये सोच रहे हैं कि अगर आप नीट यूजी 2020 में सक्सीड हो गए तो आपका और आपके फैमिली मेंबर्स का सपना सच हो जाएगा? यस, काजल, दैन, संयम, या क्रिश, कुश, मेघा, दाम्या, भावना, साक्षी, yes, 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 yes. So, Devraj, Mitwa. So here I am going to give you some tips about it without wasting our time. As you can see, what is NEET? We already know the full form of a NEET is National Eligibility Cum Entrance Test. Thank you, Kirti. Then what is NEET? That is National Eligibility Cum Entrance Test. Now, for whose admissions NEET is required? You know, this is somewhat which is very interesting. बहुत ही मजा आएगा इसमें। कुछ कुछ नाम आपको देखेंगे कि यार मैंने ये पहली बार सुने हुए हैं, और वो दोनों नाम के लिए भी मैं थोड़ा बहुत बोलने वाला हूँ। एक तो आपको मालूम है कि मेडिकल के एडमिशन के लिए ये चाहिए, ठीक है, फिर डेंटल के एडमिशन के लिए चाहिए, फिर आयुर्वेदा के लिए चाहिए। ये नई चीज आ गई है जिसको हम बोलते हैं सिद्धा। So what is this Siddha? Siddha is a kind of a trend of the medicine जो साउथ इंडिया में पाया जाता है, और साउथ इंडिया में इनकी काफी कुछ कॉलेजेस भी है, चेन्नई में है, केरला में है, काफी जगह पे कॉलेजेस है। तो सिद्धा जो है वो एक नई चीज है, शायद वो आपको पता ना हो। और एक दूसरी चीज है जिसको बोलते हैं हम यूनानी मेडिसिन। तो यूनानी मेडिसिन के लिए भी नीट में अपीयर होना जरूरी रहता है, ठीक है। यूनानी मेडिसिन जो है उसके ऊपर एक, अगर आप फिल्म में पता हो तो एक फिल्म भी आ गई थी और उसका नाम था खानदानी शफा खाना। सो वो ये सोनाक्षी सिन्हा की मूवी थी, और उसमें ये यूनानी मेडिसिन के बारे में बताया गया था। देन होम्योपैथी, दैट वी ऑलरेडी नो। सी, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि एमबीबीएस और बीडीएस में ही वैल्यू है, बाकी सब में वैल्यू नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये जो माहौल है उसमें हर तरह की मेडिसिन काम में आती है। अभी आप देख सकते हैं कि हर कोई काम पे लग गया है। आयुर्वेदिक डॉक्टर जो हैं उन्होंने भी काफी कुछ मेडिसिन ट्रीटमेंट दिखाई है और वो सब लेते भी है। आई एम श्योर दैट एट योर होम आल्सो यू आर यूजिंग इट। देन आफ्टर
the homeopathic medicines are also there and they have also given their contribution to the world. So you know, ऐसा नहीं है कि सिर्फ MBBS और BDS यही अच्छे हैं, बाकी सब डिसिप्लिन भी बहुत ही अच्छे हैं। अगर कोई मुझे पूछता है तो मैं ये बोलता हूँ कि ये सब जो डिसिप्लिन है उस सब चीजों में आप सरस्वती माँ की आराधना कर रहे हैं। और ऐसा हम कभी बोल नहीं सकते हैं कि अगर सरस्वती माँ की आराधना आप ये रास्ते से कर रहे हैं तो वो गलत है। कुछ भी गलत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि आपको कैसे और कहां से सबसे अच्छा डॉक्टर बनना है। देन आफ्टर द नेक्स्ट इज मार्क एनालिसिस फॉर स्टैंडर्ड 11। देखिए, इसमें कुछ पेपर स्टाइल ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हमने क्या किया है कि पूरा एनालिसिस किया है कि जो स्टैंडर्ड 11 के 5 यूनिट है उसमें से तकरीबन कितने क्वेश्चंस आते हैं, ओके, और वो क्वेश्चंस जो है उसमें से कितने मार्क्स का आता है, ठीक है। तो यूनिट 1 जो है उसमें से तकरीबन 8 से 11 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 32 to 44 मार्क्स का आप इससे मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए, जैसे आपको मालूम है तो आपको सब मालूम पड़ जाएगा। जैसे ये है यूनिट 2 है, उसमें 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये एक एनालिसिस है, यहाँ पे कोई पेपर स्टाइल नहीं है, ये ऐसा नहीं बोला गया है कि इतना ऐसे ही आना चाहिए, लेकिन आज तक के जो पेपर्स हैं उनको एनालिसिस करने के बाद हमने ये कुछ एनालिसिस का कंक्लूजन आपके सामने रखा है। और इससे आपको मालूम पड़ेगा कि बायोलॉजी जो है वो 50% होता है नीट में, उसमें कोई भी चैप्टर को आपको ऑप्शन में रखने की जरूरत नहीं है। हर एक यूनिट में से, हर एक चैप्टर में से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा गया तो भी आपको प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि उसकी ज्यादा असर अपनी साइकोलॉजी और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे भी रहती है। तो बायोलॉजी आपने खुद ने सिलेक्ट किया हुआ सब्जेक्ट है, फिर उसमें आप ऑप्शन मत ढूंढिए, ठीक है। जो भी बायोलॉजी के बुक में दिया है वो पूरा आपको करना है। आगे है, ये है मार्क एनालिसिस फॉर स्टैंडर्ड 12। तो मार्क एनालिसिस फॉर स्टैंडर्ड 12 जो है उसमें है यूनिट 6, 7, 8, 9, 10। और उसमें आपको कौन कौन से, जैसे यूनिट 6 है तो उसमें से 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसके जो वेटेज रहता है वो 40 to 44 मार्क्स रहने वाला है, ठीक है। वैसे ही 7th यूनिट जो है उसमें से 44 to 52, वैसे ये नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं वैसे ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि अगर पूरा का पूरा आप एनालिसिस देख लो तो वो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछा जा सकता है, जैसे आप सब लोगों को मालूम ही है, क्योंकि 16 to 17 क्वेश्चंस तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स जो हैं उसी में से पूछे जाते हैं, जो सबसे ज्यादा है, ठीक है। वो आप देख सकते हो और आपको मालूम भी है। अभी नेक्स्ट जो है वो है, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 4 सीक्रेट्स टू गेट सक्सेस इन नीट यूजी 2020 और गुजकेट। So how many of you want to learn? Whoever wants to learn, please chat me 4S, numerical 4 and then S, so that I can get to know that how many of you are ready to learn about this. Yes, Ritu, Taksh, Khushi-Tanna, Megha, Vansh, Bhavna, Vishal, wow, Hinal, Nisargi, Hardik. Oh, so far 35 people, Meet Gupta, then Damya Shukla. So 41 people wants to know about the 4 secrets. Yeah, अभी ऐसा हो सकता है कि काफी कुछ चीजें वैसे भी हो को जो आपको मालूम हो, लेकिन जब मैं यहाँ से बोलूंगा तो वो चीज आपकी ऑथेंटिक हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें और आपको हम जल्दी से 4 सीक्रेट बताने की तरफ आगे जाते हैं। तो पहला जो सीक्रेट है वो क्या है? पहला जो सीक्रेट है वो है, are you ready to go for one secret number 1? If you are ready, just write down ready, R for ready. Just write down R for ready. वाह, तो ये चीज है कि आपको प्रिपरेशन करना है, कैसे करना है, तो ये चीज है। जो पहला है अबाउट द एग्जाम प्रिपरेशंस। तो जब आपके पास ऐसे आपको 2 महीने बाकी है, 2 साल बाकी है, 1 साल बाकी है प्रिपरेशन के लिए, तो कैसे आपको प्रिपरेशन करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और उसके बाद में उसमें डिटेलिंग में भी हम जाएंगे स्टेप बाय स्टेप
कि आपको कैसे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इफ यू वांट टू बी रेडी विथ योर नोट्स, पेन, पेपर एंड ऑफ कोर्स द 11-12 sorry, of course with the 11-12 biology books also, so just be ready with that, okay, so that you can make some things you want to write down, you want to see, then you can write down, you can right now can see over there, okay। तो अभी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहली चीज जो है वो प्रिपरेशंस है। प्रिपरेशंस कैसे करेंगे? तो प्रिपरेशंस के लिए आपको जो करना है वो 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप, यही जो मेरा ओपिनियन है, मेरा मानना है कि यही जो स्टेप है उसी को आप फॉलो करना है, ठीक है। आपको मैं स्टेप्स दिखा रहा हूं, आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए जो भी स्टेप्स है वो, ठीक है, और फिर मैं आपको आगे उसमें बता रहा हूं। देखिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहली चीज है एनसीईआरटी का जो बुक है या सीबीएसई का टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ना है आपको। और ये जो लिखा है ना वो बहुत ही बढ़िया चीज है, इसको आप गलती से भी नजरअंदाज मत करना। ये जो है विथ अपडेट्स, तो अपडेट्स जो है ना वो आपके पास होने चाहिए। जैसे कि सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड वालों ने खुद ने काफी कुछ अपडेट्स दिए हुए हैं कि पहले के सिलेबस में या पहले वाली टेक्स्ट बुक जो थी उसमें ये चीज थे और अभी ये चीज है। देखो, इसमें मेरे पास लिमिटेड टाइम है एंड मैं आपको काफी कुछ देना चाहता हूं, तो मैं ये अपडेट्स दे नहीं पाया हूं कि क्या क्या चीज है, लेकिन आई एम श्योर दैट यू कैन गेट इट एंड इफ यू आर नॉट हैविंग इट you can give me a call and I will send you at your WhatsApp, okay, or I will just prepare that whole PDF and जहाँ पे ये Facebook लाइव अपना हो रहा है, यही रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसके कमेंट में मैं 1-2 दिन में रख दूंगा पूरा PDF, तो उसमें से आप जा सकते हैं और उसमें से आप पूरे अपडेट जो है उसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज ये है कि आप एनसीईआरटी सीबीएसई टेक्स्ट बुक को बहुत ही बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए और विथ अपडेट के साथ, ठीक है। फिर जो भी कवर पेज है पूरा सीबीएसई और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, वो उसके बीच में जो भी डाला है ना सब कुछ आपको पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। देखो, रट्टा मारना है वैसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन ये मैं पक्का बोलूंगा कि आपको सब कुछ पढ़ना है। देखिए, इसमें समरीज भी आती है, काफी कुछ चैप्टर वैसे भी होते हैं कि पूरे चैप्टर में तो दिया है, लेकिन वो समरीज में जो 3-4 चीज बोली गई है वो आपको टेक्स्ट बुक में जो थियरी वाला चैप्टर है उसमें नहीं बताया गया है, ठीक है। जैसे चैप्टर नंबर 5 में एक परफेक्ट डेफिनेशन जीनोटाइप का दिया गया है, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं जनीन लक्षी प्रमाण। तो जनीन लक्षी प्रमाण जो है और जीनोटाइप जो है उसके लिए पूरा एक डेफिनेशन दिया गया है, वो बहुत ही बढ़िया सा है। वैसी छोटी छोटी काफी चीजें हो सकती है, रहती है, जो समरीज में रहती है, जो आपको खोज निकालना है और उसको अंडरलाइन भी करते जाना है, ठीक है। फिर आप जो थियरी पढ़ रहे हो उसमें काफी कुछ क्वेश्चंस डाले जाते हैं। जैसे जेनेटिक्स का चैप्टर नंबर जो जेनेटिक्स का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसमें कुछ रहता है कि नाइट्रोजन बेसिस वो कितने होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस वो कितने होते हैं, और वो सब जो है वो चैप्टर नंबर 6 में रहते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि ये इकोलाई बैक्टीरिया में इतने हैं, जो बायोलॉजी अपना ह्यूमन बॉडी जो है उसमें न्यूक्लियोसोम्स कितने होंगे, ये नाइट्रोजन बेस पेयर्स कितने होंगे, वो सब चीजें रहती है। तो वो सब क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं सीबीएसई टेक्स्ट बुक में ही, तो वो आपको आंसर करने हैं। आपका एक पर्सनल नोट होना चाहिए जिसमें आपने वो लिखा हुआ हो, वो सब क्वेश्चंस के आंसर आपको मालूम रहने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर दो, क्योंकि उनका हक बनता है, वो पूछ सकते हैं क्योंकि उन्होंने टेक्स्ट बुक में पूछा है। तो फिर ये अपना काम है कि हम अपने तरीके से उसको पढ़ें, ठीक है, और उससे फिर हम आगे बढ़े, ठीक है। फिर दूसरी चीज है एक्सरसाइजेस, जो भी एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चंस है वो सबसे पहले देख, वो भी सबसे अच्छे से कर लीजिए। दूसरा चीज होता है कि चैप्टर शुरू होने से पहले पहले कभी कभी साइंटिस्ट का इंफॉर्मेशन रहता है। देखिए, अभी आपको ये लगेगा कि सर साइंटिस्ट का प्रिपरेशन जो भी रहता है इंफॉर्मेशन, वो तो कभी हमको पूछा नहीं जाता है। ठीक है, चलो पूछा जाए या ना जाए वो एक चीज है, लेकिन आपको रिस्क क्यों लेना है भाई? है, आपका पूरा जिंदगी कहाँ पे आगे बढ़ेगा ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो व्हाई यू वांट टू टेक रिस्क?
और एक मजे की बात बताता हूँ कि कभी कभी ये सब हम पढ़ते हैं ना, ये पूरा देखिए 2 या 3 पैराग्राफ में पूरा जो साइंटिस्ट, जो बायोलॉजिस्ट हैं, उनका पूरा एक जीवन चरित्र दे दिया है आपको, ठीक है। तो पढ़िए मजे से, आपको मालूम पड़ेगा उन्होंने कहाँ कहाँ पढ़ाई की, फिर क्या किया, फिर क्या किया। और कभी कभी क्या होता है कि सालों के बाद या कभी कभी जब आप लो फील कर रहे हैं, थोड़ा निराश हैं, थोड़े डिप्रेस्ड हैं, उस वक्त ये सब लोगों की जो जीवन चरित्र हैं, केस स्टडीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, वो आपको कभी ना कभी इंस्पायर कर देती है। तो इसके 2 बेनिफिट है। एक तो चीज ये है कि आपको कुछ भी उसमें से पूछा गया है तो यू आर कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपको तो मालूम है। और दूसरी चीज ये भी है, ठीक है, कि आप लोगों को एक दूसरी चीज ये भी मिलेगी कि आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगी, कुछ कुछ प्रेरणाएं भी मिलेंगी, आप उससे प्रेरित होकर बहुत ही बढ़िया जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और एक चीज भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो जीवन चरित्र है, उसमें से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, ठीक है, बहुत कुछ सीख पाएंगे। और हो सकता है आगे बढ़ के आपको कॉलेज में आगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो हो सकता है। और एक चीज जो मैं बताने वाला हूँ ये है, काफी कुछ बायोलॉजी के स्टूडेंट्स मेरे वैसे हैं जो लोगों को ये हमेशा शिकायत रहती है, कंप्लेंट रहती है कि सर हमको फिजिक्स अच्छा नहीं लगता है। तो भाई ऐसा मत करो, साइंस जो है वो पूरा इकट्ठा है, ठीक है। उसमें जो भी आपको बोला गया है, जो भी पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छे से रखो, है ना। आपको मालूम नहीं है कि बाद में क्या हो सकता है। जैसे डीएनए का जब ये पूरा वाटसन क्रिक मॉडल जो है, आप देखना उनकी हिस्ट्री में कौन कौन से बायोलॉजी से था, कौन फिजिक्स से था, कौन केमिस्ट्री से था। तो ये सब भी चीजें मायने रखती है, ठीक है। तो आपको ये सब करना है, और ये सब होने के बाद आपको जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है वो करना है, वो भी सॉल्व करना है। लेकिन यही सीक्वेंस में जाना है, ठीक है। पहले आपको टेक्स्ट बुक पक्की करनी है, उसमें विद अपडेट के साथ बढ़िया से करना है। समरीज जो है वो करनी है। फिर क्वेश्चंस जो है थियरी में दिए गए हैं, उसके आंसर्स आपको एक नोट में लिख देने हैं। एक्सरसाइजेस करनी है, साइंटिस्ट के पूरे इंफॉर्मेशन जो हैं वो आपको देखने हैं, और उसके बाद आप एग्जाम्पलर करेंगे। So, are you agree with me that this should be the followed? And if you are agree with me, just write down A for agree. Just write down A for agree. Yes. Thank you so much. Yeah, ये बहुत ही बढ़िया लगता है, इतने बढ़िया से लोग आंसर दे रहे हैं, इतना बढ़िया सा इंटरेक्टिव सेशन हो रहा है, बहुत मजा है, बहुत मजा आता है। क्योंकि मेरी भी एनर्जी बढ़ती जाती है जैसे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आते जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। अंजलि है, विपुल है, बाकी सब लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। चलो 45 लोगों ने यहाँ तक आंसर दे दिया है, बहुत ही बढ़िया चीज है। अभी हम आगे बढ़ेंगे कि 45 लोगों के लिए ये जितने लोग तो हमारे साथ एक्टिव जुड़ गए हैं ये जूम की लिंक पे, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए पार्टिसिपेशन जो है ना वो एक्टिव होना जरूरी है, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको बताने वाला हूँ फिगर्स के बारे में। जो फिगर्स हैं वो आपको कैसे करने हैं। अभी एक चीज ये है कि आप जो भी फिगर्स आप अभी पढ़ रहे हो, डायग्राम जो पढ़ रहे हो ना, वो बहुत ही बढ़िया से 4 कलर वाले में पढ़ रहे हो, लेकिन आप उसमें भी लेबलिंग पूरा अच्छे से करके रखो। आपको मालूम नहीं है कि ये कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर वो पूछा जा सकता है तो कैसे पूछा जा सकता है वो चीज है। और कभी कभी क्या होता है, आपको वो चीज पे ज्यादा ध्यान रखना है जो थियरी में उसके बारे में कोई भी बात नहीं बताई गई है लेकिन लेबलिंग में है। ऐसी ऐसी काफी कुछ चीजें हो सकती है जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मैं आपके साथ ये एक अच्छा सा बैक्टीरियोफेज जो है उसका डायग्राम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, अभी मैं एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ कि ये जो सी ऑप्शन है ना, सी वाला ऑप्शन है, ठीक है, उसका लेबलिंग क्या होगा। अगर आपको मालूम है प्लीज चैट बॉक्स में जाइए और लिखिए कि कौन सा ऑप्शन होता है सी के लिए। बहुत बढ़िया देवराज चैटर्जी, आपकी बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन है। ओके ओके, गुजराती मीडियम वाले बोलेंगे कि ये ग्रीवा है, एंड इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे कि ये कॉलर है। बहुत ही बढ़िया, बस ऐसे ही जुट के आपको बहुत ही अच्छे से ये प्रिपेयर करना है। क्योंकि क्या है, देखो जो हेड एंड टेल है, टेल फाइबर्स है, वो सब तो मालूम रहता है, लेकिन एक और भी चीज है कि शीट है, जो लेयर है जिसको हम आवरण बोलते हैं गुजराती में, वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि जो ग्रीवा और उसको कॉलर बोलते हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। 15 लोगों ने आंसर दिए हैं, बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही अच्छा लगा। तो इस हिसाब से आपको फिगर और आपको फिगर्स डायग्राम्स जो है
वो जब ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिए जाएंगे तब वो कैसे लगेंगे वो देखना है आपको। और एक चीज मैं बताता हूँ कि ये तो ठीक है, इसमें 3-4 ही लेबलिंग थे, अगर ऐसा कोई डायग्राम है जिसमें बहुत सारे लेबलिंग है, बहुत सारे नाम निर्देशन दिए गए हैं, तो उसका सीक्वेंस भी आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि क्या है, हो सकता है क्योंकि ये लाखों की तादाद में ये प्रिंट किए जाते हैं, नीट के जो पेपर्स हैं वो, हो सकता है कि उसमें कोई जगह पे जो लेबलिंग दिखा रहे हैं उसमें एक्यूरेंसी ना भी हो, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि वो लोग कौन सी चीज पूछ रहे हैं। उसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने पूरा का पूरा कैसा देखा है, यानी पूरा लेबलिंग कैसे आपने याद रखा है, कैसे आप विजुअलाइज कर सकते हो, वो आपको देखना है। ठीक है, ये एक और फिगर है। ठीक है, इसमें ये 1 और 2 चीज है, अगर आप इसका नाम बता सकते हैं और तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मैं यहाँ पे 5 सेकंड का वेट करता हूँ, अगर आप इसका नाम बता सकते हैं 1 और 2 चीज जो है उसका, तो मैं मान सकूंगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो सही में बहुत ही बढ़िया है। देखिए जल्दी से मुझे इसमें आप दे दीजिए अपना आंसर। एक है एयर इनलेट, ओके, फिर फिर ओके, NH3, ओके, और कुछ जाइए जाइए, अभी आप ब्लफ कर सकते हैं, अभी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अभी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये तो बस हम पढ़ रहे हैं और ये बस एंजॉय कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, हाँ, फिर बायोगैस, ये तो पूरा बायोगैस है। ठीक है, फिर बताइए और बताइए, तो बस बोलते जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर कोई अपने बाय बर्थ कुछ सीख के नहीं आता है। सही है, काजल सोनी का आंसर सही है। एक है गैस होल्डर, तो ये वाला जो है वो गैस होल्डर सही है। अभी सब लोगों ने या तो दिमाग की बत्ती जला ली है या तो किताब में से देख लिया है कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए अभी ये जो चीज है ना, इसको हम बोलते हैं गैस होल्डर, वो गुजराती मीडियम में भी गैस होल्डर ही लिखा गया है। और ये जो है उसको बोलते हैं हम गैस। तो यहाँ से वायु बाहर निकलता है, जो बायोगैस बाहर निकलता है वो यहाँ पे एयर दिया गया है, वायु या गैस दिया गया है, वायु दिया गया है गुजराती मीडियम में। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया सी चीज है। ये इसी तरीके से आपको करना है। मैं कहीं पे भी ये ऐसा लेवल में यहाँ पे कहीं पे भी कर सकता था, लेकिन मैंने इस दोनों चीज पे किया है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको कुछ कुछ मायने आएगा, माइंड में आएगा कि क्या मायने रखता है, कैसे मायने रखता है और कैसे प्रिपरेशन करने चाहिए। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है ये चीज है अपने पास, ये क्या है, ये है वर्टिब्रेट्स। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में कहाँ पे कितने लोग, कहाँ पे कितने लोग एक्सटिंक्शन है या कितने परसेंटेज है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बताइए, यहाँ पे क्या होना चाहिए बताइए, क्या लिखा होना चाहिए? एव्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एव्स, सही है, एकदम सही आंसर है। यहाँ पे बर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, और गुजराती में हम उसको पक्षी लिखते हैं, लेकिन गुजराती मीडियम वालों को भी उतना तो मालूम ही है कि बर्ड्स का मतलब पक्षी रहता है। ठीक है, फिर ऐसे पाई चार्ट जो है वो भी आपको अच्छे से करने हैं, काफी जगह पे पाई चार्ट दिए गए हैं। ठीक है, वो सबसे, ये देखिए कुछ भी निकालना नहीं है, पूरा का पूरा करना है अपने का। जो बायोलॉजी है वो अपना फेवरेट सब्जेक्ट है और उसमें अपने को मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं। ठीक है, कुछ भी होके उसमें मैक्सिमम मार्क्स देने हैं। लेकिन मैं कभी ये नहीं बोलने वाला कि सिर्फ बायोलॉजी को पढ़ो, मैं बोलूंगा कि फिजिक्स को सबसे ज्यादा पढ़ो, क्योंकि जो आपको मालूम है वो सबको मालूम है। जो आपका फेवरेट है बायोलॉजी, वो सबका फेवरेट है। ठीक है, तो सबका वीकनेस क्या है? सबका वीकनेस है फिजिक्स। तो उस पर ज्यादा आप प्रैक्टिस करो और ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, ओके। लेकिन हाँ, मैं पक्का ये बताना चाहूंगा कि अगर आप नीट का क्वेश्चन पेपर लिखते हो तो सबसे पहले बायोलॉजी लिखिए। बायोलॉजी आप 45 to 50 मिनट्स में 90 क्वेश्चंस जो है उसके आंसर कर दीजिए सबसे पहले, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं रहते हैं। बहुत बढ़िया काजल सोनी, आपने यहाँ पे एक बढ़िया सा आंसर दे दिया है कि ये भी एक पाई चार्ट है और इसमें क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वो कितने परसेंटेज रहता है, कितने परसेंटेज रहता है? 60% रहता है, 60%। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो वो 60% रहता है। ओके, तो वो ऐसे भी आप पाई चार्ट देख के बता सकते हैं कि ये 50% से तो अप ही है, 50% से कम तो है ही नहीं। ठीक है, तो उसमें आपको देख के रखना है कि क्या चीज है। और देख लेना
ये ही है 60% कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वो देखना है आपको, और वैसे ही पाई चार्ट दिखा ही रहा है कि वो 50% से अप है, ठीक है। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। एक आपको ये फ्लो चार्ट भी अच्छे से करने हैं। तो फ्लो चार्ट कहाँ कहाँ पे दिए गए हैं, काफी कुछ चैप्टर हैं जहां पे फ्लो चार्ट दिए गए हैं, ठीक है। जैसे आप कोई बता पाएगा कि ये फ्लो चार्ट कौन से टॉपिक में से दिया गया है? कोई टॉपिक का नाम चाहिए मेरे को, कौन से टॉपिक में से ये दिया गया है, मेरे को वही चाहिए। बहुत बढ़िया, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है काजल, परी, वंश, बहुत बहुत बढ़िया, मितवा, बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही जुड़े रहिए, मजा आएगा। ऋत्विक, बहुत बढ़िया, रीचा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो वो है जैविक विशालन, जिसको हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। पेज नंबर 276 पे दिया गया है। लेकिन अभी आप किताब मत खोलिए, ये दो चीज हैं, इसको आप अच्छे से बताइए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। दोनों में से क्या होना चाहिए वो आप बताना है, आपको अभी बताना है मेरे को, तो मुझे मालूम पड़े कि कैसे आप क्या करते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे तो एक वाटर है, बहुत बढ़िया, और उसके ऊपर क्या रहता है, लार्ज फिश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके साथ आपको मालूम रहना चाहिए कि वहां पे डीडीटी का जो प्रपोर्शन दिया गया है वो कितना है और कैसा है, ठीक है। यही बस यही चीज है, ऐसे ही आपको प्रिपेयर करना है, और ऐसे आप प्रिपेयर करते जाएंगे, आपका बहुत ही बढ़िया कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आप अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। देखिए, कभी भी जिंदगी में कभी भी ये मत सोचिए कि आपने जो किया है वो बहुत हो गया, कभी सेचुरेट मत होइए। हाँ, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, लेकिन सेचुरेट नहीं होने चाहिए। तो सेचुरेट अगर आप जिंदगी में हो गए ना, तो आप समझ लो कि आप जो लेवल पे हो वहीं पे रहोगे, या तो उससे भी नीचे चले जाओगे। जो लेवल पे हो वहीं पे रहोगे, वरना उससे भी नीचे चले जाओगे। तो मैं मानता हूं कि आपको वो लेवल पे नहीं रहना है, उससे नीचे भी नहीं जाना है, उससे ऊपर जाना है। उससे ऊपर जाने के लिए आपका जो एस्पिरेशन है वो ज्यादा होने चाहिए, ड्रीम्स ज्यादा होने चाहिए, कुछ ना कुछ और व्हाट नेक्स्ट ये पूछते रहिए अपने को, ठीक है। और ये पूरा जो एक एक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो पूरे समंदर हैं, ठीक है। काफी फैकल्टीज जैसे मेरे हैं, वो फ्रेंकली अगर आपको बोलेंगे तो वो भी कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो मैंने बोला वही है, ठीक है। हम भी कुछ ना कुछ अपडेट होते रहते हैं और हमको भी अपडेट रहना पड़ता है। तो ये सारे चीज जो है वो आप दिमाग में रखिए। काफी लोगों को ये है कि 3 मई को आने वाला था हमारा नीट, अभी तो जुलाई में चला गया है, मैंने तो सब पढ़ लिया है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेटा आपके सर को पूछो, आपको सर भी वो बोलेंगे कि नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि वो खुद आपके जो टीचर है वो 100% है, बिकॉज नो वन इज 100%। ओके, तो एक कहीं पे भी सेचुरेट मत होइए, और ये आपका जो काम है वो अच्छे से अच्छा करते रहिए, ठीक है। तो ये चीज है, एक फ्लो चार्ट आपको हमने एक एग्जांपल दी है, ठीक है। एक और ये एग्जांपल है, आपको दिखना है कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या होना चाहिए। चैट बॉक्स में मेरे को दोनों के आंसर चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, और कहाँ से लिया गया है, कौन से टॉपिक से लिया गया है। सबसे पहले मुझे टॉपिक के नाम भेजिए। टॉपिक का नाम है ग्लाइकोलिसिस, बहुत बढ़िया कविता, निसर्ग, ओके, निसर्ग सही है। निसर्ग बोल रहे हैं कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, बहुत बढ़िया। खुश बता रहे हैं ग्लाइकोलिसिस है। मेगा बता रहे हैं जो दूसरा है वो पीजीएल है, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सही है, ये ग्लाइकोलिसिस का चार्ट है, और हमने उसको कट करके सिर्फ फॉस्फोराइलेशन आपको दिया हुआ है, वो भी पूरा नहीं दिया गया है। और उसमें यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद आएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और उसके बाद आएगा पीजीएल। तो पीजीएल जो है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। और इसी तरीके से बस आपको बस अच्छे अच्छे अपने प्रिपरेशन किए हुए हैं वो आपको दिखने चाहिए, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ कि एमसीक्यू प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस पेपर कैसे करने हैं, ठीक है। तो वो कैसे करने हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब लोग करते हैं ना, वो बोलते हैं कि सर मैंने 50 एमसीक्यू कर दिए, 100 एमसीक्यू कर दिए। देखिए, एमसीक्यू जो सॉल्व करते हैं ना, उसमें आपको ये देखना है कि सिर्फ एमसीक्यू कितने नंबर में सॉल्व किए वो मायने नहीं रखता है, उसमें से कितना आपने नया आइडिया निकाला, आप कितना सीखे कि किस किस तरह से कौन सी चीजें पूछी जा सकती है, कहाँ से पूछी जा सकती है, वो ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। ओके, जैसे मैं आपके सामने एक तो रख रहा हूँ। देखो, जो मैं ये मानता हूँ कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको जितनी आप कर सकते हो ना उतनी करो, कहीं से भी करो। कोई भी रेफरेंस बुक उठाओ,
अपना जो टेक्स्ट बुक है वो उठाओ, जो ऑनलाइन टेस्ट चलते हैं वो उठाओ, किसी का भी टेस्ट दे दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे ना, उसका आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अगर आपको वो सॉल्व नहीं होता है तो आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। तो हर एक महीने में अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है या नॉलेज बढ़ता है, तो दोनों तरीके में आपको तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। ठीक है। और ये गणपत यूनिवर्सिटी जो है, उन्होंने भी बहुत बढ़िया सा मॉक टेस्ट रखा है। आप सब लोग, मेरी एक गुंजाइश है, एक रिक्वेस्ट है, विनती है आपसे कि प्लीज उसमें आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है। तो क्या है कि आपको मालूम पड़ेगा कि कितने बच्चों में से आपका रैंक कहाँ पे है। ठीक है। अगर आपका रैंक बढ़िया निकल गया तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। अगर नहीं निकला है तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपको अभी तक जितना करना चाहिए उतना आपने नहीं किया है। और वो कब है वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले कैसे आपको एमसीक्यू करने हैं, देखिए, जैसे विच ऑप्शन शोज करेक्टली मैच्ड पेयर्स फॉर कॉलम 1 एंड 2। ठीक है। तो ये सब जो होता है ना, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं तो जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है। इसके 4 ऑप्शन जो है ए बी सी डी है ना, वो मैंने नीचे दिए गए हैं। ठीक है। ए बी सी डी। ओके। तो आप देख सकते हैं कौन सा आपको सही लगता है। ए ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है या सी ऑप्शन सही है या डी ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको हमको कहना है। अभी चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, बताइए ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। अच्छा, ज्यादा लोग डी फॉर दिल्ली दिखा रहे हैं। ओके। गुजराती, गुजराती बेटा आ ઋતુ ચક્ર જે છે ને એના ઉપરનું આખું છે, બરોબર છે। આ ઋતુસ્રાવનો તબક્કો છે, બરોબર છે। પછી આ ધ્રુવકાય વિશે લખેલું છે, બરોબર છે। એટલે પ્રથમ ધ્રુવકાય ને દ્વિતીય ધ્રુવકાય વિશે જે છે એ છે। પછી આ જે છે એ પ્રોલિફરેટિવ ફેઝ છે, તો એવી જ રીતે કહીએ છે। અને એન્ડોમેટ્રિયમ પ્રિપેર્ડ ફોર ઇમ્પ્લાન્ટેશન। એન્ડોમેટ્રિયમ એટલે શું થયું? એન્ડોમેટ્રિયમ એટલે ગર્ભાશયનો અંત આવરણ, બરોબર છે, જે ઇમ્પ્લાન્ટેશન માટે રેડી છે। એટલે શું થયું કે એ ગર્ભ સ્થાપન માટે તૈયાર છે। હું માનીશ કે તમને ગુજરાતીમાં સંતોષ થઈ ગયો હશે। બેટા જેમણે બી ગુજરાતી લખ્યું ને એને આ ગુજરાતી હું બોલ્યો એમાં સેટિસ્ફેક્શન થઈ ગયું હોય તો પ્લીઝ બેટા એના ઋત્વિક એના અંદર સુપર્બ લખી કાઢો, એટલે મને ખબર પડે મારું ગુજરાતી બી એટલું જ સુપર્બ છે જેટલું સુપર્બ हिंदी અને इंग्लिश છે। ઓકે। या थैंक यू सो मच ऋत्विक, थैंक यू सो मच। ओके। सो नाउ तो जो सही आंसर है वो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, वो डी फॉर दिल्ली है। ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी जो एमसीक्यू जो है वो पहले जहां पे पूछे गए थे वहां से कुछ कुछ लिए हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जब भी आंसर करते हो तो कैसे करना है। ठीक है। देखिए, आंसर तो जो आप करोगे वो तो आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड रहता है, लेकिन जो एमसीक्यू सॉल्व करने हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं। देखिए, हर एक जो एमसीक्यू है ना वो एक नहीं है। हर एक एमसीक्यू में आप कम से कम और 3 एमसीक्यू देखेंगे। यानी अगर आप सही तरीके से 50 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो आपने 200 एमसीक्यू सॉल्व कर दिए हैं, वैसा होना चाहिए। वो कैसे होता है? देखिए, 4 ऑप्शन है, आपको मालूम पड़ गया कि कौन सा है अच्छा ऑप्शन, ये सच्चा ऑप्शन कौन सा है वो आपको मालूम पड़ गया। अभी भी लोग मुझे आंसर दे रहे हैं। ठीक है। मैं अभी क्वेश्चन आपको वापस दिखाऊंगा, लेकिन ये चीज सोचने वाली चीज ये है अपने को कि जो सही ऑप्शन है वो तो है ही, वो तो चलो मालूम पड़ गया, लेकिन जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए आप जा रहे हैं, जो एग्जाम के दौरान मैं नहीं बोल रहा हूँ, जब प्रैक्टिस एग्जाम करते हो तब मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप घर पे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई बुक में से पढ़ रहे हैं, तब आपको क्या करना है, तब आपको एक और चीज देखनी है। और वो चीज आपको देखनी है कि बाकी के 3 ऑप्शन जो है वो कौन से टॉपिक से है। कभी कभी क्या होता है कि जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं ना वो वैसे के वैसे एग्जैक्टली रिपीट नहीं होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया था अगले साल में, ठीक है, अगले कुछ सालों में, उसी में से वो लोग जो ऑप्शन जो है ना, वही जो 4 ऑप्शन है उसका एक क्वेश्चन बना के रख देते हैं। ठीक है। तो वो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि 4 जो ऑप्शन है उसमें से एक तो सही है, चलो, लेकिन बाकी के 3 ऑप्शन कहाँ से कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। ये तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तो आपको जब एक क्वेश्चन दिखता है तो उसको आप सिर्फ एक क्वेश्चन तरीके के मत देखिए। या तो अभी आप मुझे आंसर कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा फ्री लिविंग એટલે मुक्त जीवी, फ्री लिविंग, एरोबिक,
જારક શ્વસન કરતો હોય એવો, અને નોન ફોટોસિન્થેટિક પ્રકાશ સંશ્લેષણ ના કરતો હોય એવો નાઇટ્રોજન ફિક્સિંગ બેક્ટેરિયા કોણ છે? એટલે આમાંથી મુક્ત જીવી, જારક શ્વસન કરનારો અને પ્રકાશ સંશ્લેષણ ન કરનારો બેક્ટેરિયા જે નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન કરે છે એવો કયો છે? બરાબર છે. એના તમારે મને ફટાફટ આન્સર્સ આપવાના છે. બરોબર છે. તમે શું માનો છો, કયા આન્સર્સ માનો છો એ તમારે લખવાનું છે. સો પ્લીઝ give yes વંદિત મહેતા, keep giving me answers, yes, thank you Rutvik, thank you. Give answer, yeah, whether it is wrong right that is different thing, okay, but just make yourself 100% involved in this so that we can enjoy the session on either side. देखिए सिर्फ मैं बोलता रहूंगा मजा नहीं आएगी, सिर्फ आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे, मजा नहीं आने वाला है. ठीक है, चलिए. तो इसमें जो ऑप्शन है वो कहां से दिया गया है, कौन से चैप्टर से दिया गया है, कोई वो बता पाएगा मुझे कौन से चैप्टर पे दिया गया है? चैप्टर नंबर 12 से दिया गया है, खुश बता रहे हैं. चैप्टर नंबर 3 बता रहे हैं परी. ठीक है, तो यही चीज है कि देखना है आपको कि कहाँ पे कैसा क्वेश्चन है और कहाँ से आंसर निकलते हैं. और आपको सिर्फ इसका आंसर जो है वो नहीं देखना है, आपको और भी चीजें देखनी है. देखो, अपने ईगो को सेटिस्फाई मत करो, ईगो को साइड में रखो. सबसे पहले ये देखिए कि बाकी के ऑप्शन जो है उसके लिए अगर मेरे को क्वेश्चन चाहिए तो कौन सा क्वेश्चन होना चाहिए. जैसे राइजोबियम के बारे में बोलना है तो हमको बोलना पड़ेगा कि राइजोबियम जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाला है, सहजीवन धरावતું જે છે એ રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા આવે છે. બરાબર છે. તો એ રીતે તમારે वही तरीके से आपको इंफॉर्मेशन करनी है. ठीक है, ओके. तो अभी का जो आंसर है, ठीक है, वो काफी कुछ लोगों ने बताया गया है. तो कौन सा है आप राइट आंसर बताइए आप. राइट आंसर कौन सा है बताइए आप. सी. कितने लोगों को सी लगता है? मी लिखिए तो. चलिए, अभी उसके डिस्कशन में हमको नहीं जाना है ज्यादा. ठीक है, चाहे आपका आंसर सही है गलत है, लेकिन आपको कैसे ये सॉल्व करना है वो देख लीजिए. आपको ये सॉल्व करना है उस तरीके से कि आपको राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो कहाँ पे आएगा, एजेटोबैक्टर कहाँ पे आएगा, माइकोराइजा कहाँ पे आएगा और एनेबिना कहाँ पे आएगा. जो माइकोराइजा है वो तो क्या है, रूट्स और पंजाई का कॉम्बिनेशन है, तो वो तो वैसे ही निकल जाता है. ठीक है, चलो मैं हर एक एमसीक्यू पे अगर जाना चाहूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा. मैं और एक एमसीक्यू आपको दिखा रहा हूँ. चीज एंड ट्रेडिशनल ड्रिंक जो टॉडी है, ठीक है, उसमें कौन से प्रोसेस का यूज होता है. ठीक है, और इसके ऑप्शन ए बी सी डी में से आप कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं. ठीक है, ओके. ऑप्शन के आंसर आने जो शुरू हो गए हैं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. दिया पटेल और रविराज सिंह, मितवा, परी, खुशी तन्ना, दाम्या, रितु, कीर्ति, हिनल, रिचा, तीर्थ, देन हिमांशी. वाव वाव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आशीष, माली, विपुल, काफी कुछ मेरे भी बच्चे हैं, काफी कुछ बच्चे मेरे बैठे हैं यहाँ पे. संयम रावानी, थैंक यू, थैंक यू. ठीक है, तो ये जो है वो क्वेश्चन आया गया है जो पेज नंबर 182 से है. ठीक है, और उसमें फर्मेंटेड बेवरेजेस जो है उसमें से ये लिया गया है. आपको मालूम ही है फर्मेंटेशन ही राइट आंसर है. अब हम आगे बढ़ते हैं इसके लिए. बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा सा पार्टिसिपेशन हो रहा है और मैं भी बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ. ये पूरा लेक्चर जो है वो आपकी वजह से मैं एंजॉय कर रहा हूँ. बहुत ही बढ़िया. देखिए, और एक चीज मेरे को बोलनी है. फिगर्स मैंने बोल दिए, फ्लो चार्ट मैंने बोल दिए, कुछ एमसीक्यू मैंने आपने बता दिए हैं. अभी बारी आती है टेबल्स की. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टेबल्स में दिया गया होता है, ठीक है, और वो टेबल में जो भी दिया गया होता है ना वो थियरी में नहीं होता है. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन ऑफ टेबल्स विच आर नॉट गिवन इन थियरी. ठीक है, तो वैसी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ. Are you ready to see the table? If you are ready to see the table, just write down RT. R for ready and T for table. Just write down RT. Wow. Ready for the tables. Wow, wow, wow. Very good. So many people are giving me answer.
जस्ट देख लीजिए कि आप रह ना जाए, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। चलिए, तो रेडी फॉर द टेबल्स, ओके। तो ये है पहला टेबल जो मैंने गुजराती मीडियम से निकाला है। देखिए, इसमें ये पहले वाली बुक, अभी वाली बुक, ये सब नहीं सोचना है। मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ना, वही सोचना है। वही हो सकता है कि आपको वो अच्छे से दिख भी नहीं रहा हो, लेकिन जो मेरे को आपको बताना है, यस, ऋत्विक इज वेरी हैप्पी बिकॉज इट्स टेकन फ्रॉम द गुजराती मीडियम, ओके। तो काफी कुछ बच्चे हैं, अभी भी मेरे जो बच्चे हैं, वंश है, साक्षी है, काफी कुछ बच्चे हैं जो गुजराती मीडियम से मेरे पास पढ़ रहे हैं, लेकिन वो भी इसी आपके साथ है ऋत्विक, ठीक है। देखिए, रोडोफाइसी जो algae है, रोडोफाइसी લીલ જે છે એનામાં the કોષ દિવાલ, cell wall, रोडोफाइसी cell wall is made up of what? Cellulose, pectin and polysulfate ester। अभी ये जो इंफॉर्मेशन है ना, सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर, ये इंफॉर्मेशन थियरी में, जहां पे रोडोफाइसी की थियरी है, वहां पे नहीं दी गई है, ठीक है। जहां जहां आप ऐसा देखते हैं कि प्रिपरेशन करते वक्त जो टेबल आप देख रहे हैं, जो लेबलिंग्स आप देख रहे हैं, जो फिगर्स आप देख रहे हैं, फ्लो चार्ट में कुछ ऐसा दिख रहे हैं कि जो थियरी में नहीं दिया गया है, उसको आप हाईलाइट कर दीजिए, या उसको आप ऐसा कुछ उसके ऊपर राउंड कर दीजिए कि जिसके बारे में आप कभी भी रेफर कर रहे हो तो आप उसको गलती से भी भूलिएगा मत, ठीक है। तो देखिए, द सेल वॉल ऑफ रोडोफाइसी इज मेड अप ऑफ अ सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर, ठीक है। तो ये चीज है जो थियरी में दिया गया नहीं है, लेकिन टेबल में है, तो इससे भी क्वेश्चन हो सकता है, आपको वो पूछ सकते हैं, उनका हक बनता है, और आपको वो चीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज है, क्योंकि एग्जामिनर भी क्या करेगा, पेपर सेटर को डिफरेंशिएट करना है, किसको डॉक्टर, एमबीबीएस, किसको फ्री मेडिकल सीट है, पेमेंट मेडिकल सीट है, काफी बाइफर्केशन उनको करने हैं। तो हर एक क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा आएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। और एक दूसरा टेबल मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, ओके। जो दूसरा टेबल है वो ये है। अभी देखिए, आपने कोलाजन सुना है, ट्रिप्सिन, इंसुलिन, एंटीबॉडी रिसेप्टर, ये सब सुना है, लेकिन जो GLUT4 है ना, वो पूरे बायोलॉजी में और कहीं पे आपने नहीं सुना है, ठीक है। तो GLUT4 क्या होता है? तो वो होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी ग्लूकोज की बॉडी के सेल के अंदर एंट्री करने के लिए ये ट्रांसपोर्टर चाहिए। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है वो चाहिए, वो किसके लिए चाहिए? सेल्स के अंदर चाहिए, सेल्स के अंदर एंट्री के लिए चाहिए, ओके। तो वो जो है वो आपको क्या दिखा रहा है? इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल्स, ठीक है। तो ये जो चीज है वो उसके बारे में है कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4 जो है उसको इट इज उसको हम सॉल्यूट कैरियर फैमिली 2 भी बोलते हैं। वो फैसिलिटेटेड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर मेंबर 4 है, और वो एक प्रोटीन एनकोडेड है ह्यूमंस में बाय SLC2A4 जीन। जो GLUT4 है वो इंसुलिन रेगुलेटेड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, जो પ્રાઇમરીલી એડિપોસ ટીશ્યુ એટલે મેદપૂર્ણ પેશી અને સ્ટ્રેટેડ મસલ ટીશ્યુ એટલે કે રેખિત સ્નાયુ પેશીમાં જોવા મળે છે, બરાબર છે? So that is what you should know about that. So once you get to know that there is a new word, so just search about it, and I just whatever I share with you, that is just from the Google only, but that is given in the Wikipedia also. तो ये आपको करना है, ये कुछ कुछ चीजें आप करते जाएंगे तो आपका बहुत ही अच्छा सा बढ़ता जाएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल, और नॉलेज भी बढ़ता जाएगा। काजल, आप इसको GLUT4 जो है ना, इसको आप कभी भी ये कर सकते हो गूगल, और आप देख सकेंगे कि वो आ जाएगा, है ना। कोई बात नहीं, अभी नहीं, आप बाद में भी कर सकते हो, वो गूगल पे है ही है बेटा, क्योंकि हमको काफी कुछ चीजें आपको देखना है, आपको बताना है, और टाइम जा रहा है, इसीलिए मुझे एक लिमिटेशन है टाइम की, इसीलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। काजल सोनी, थैंक यू सो मच बेटा फॉर योर काइंड अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू सो मच। ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ प्रॉपर पेपर सेटर। सो साइकोलॉजी जो है आपका पेपर सेटर का क्या है, वो आपको देखना है। जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो, ये देखते जाइए कि ये क्या बताना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, किस किस एंगल से वो आपका नॉलेज परखने की ट्राई कर रहे हैं। तो ये चीज है, देखिए कैसे पूछा गया है क्वेश्चन, वो देखिए, ठीक है। फिर सोचिए क्या पूछा गया है, फिर पूछिए कहां से पूछा गया है, और देखिए कब पूछा गया है।
ठीक है, तो ये चीज रहती है। काफी कुछ क्वेश्चंस वैसे भी होते हैं कि जो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। क्या आपको मालूम है सबसे बढ़िया बैट्समैन कौन होता है? हैं? सबसे बढ़िया बैट्समैन वो होता है जो हर बॉल पे चौका और छक्का मार दे, गुरु। वो नहीं होता है, वो होता है, वो नवजोत सिंह सिद्धू वाली चीज नहीं है। हर बॉल पे चौका या छक्का नहीं मारना है। आपको अगर दिखता है कि ये अच्छा बॉल है तो बॉल को रिस्पेक्ट करना है और उसको डिफेंस करना है। वैसे ही अगर आपको मालूम पड़े कि ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप श्योर नहीं हो, अवॉइड करो, तभी आप अच्छे बैट्समैन बन पाओगे। ठीक है, ओके, तो ये दिमाग में रखना है। अच्छे जो क्वेश्चंस है उसको आप स्किप कर सकते हैं, वैसा नहीं कि हर एक में आपको आंसर देना ही देना है। ठीक है, ये मैंने बताया कि आप देखिए ये चीज है, फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो है JEE नीट या गुजकेट के लिए होने वाला है, 30 मई को होने वाला है। 10 से 1 का टाइम है। ये पूरा लिंक दिया गया है, पूरा नंबर भी दिया गया है, आप नोट कर सकते हैं। उस पे आप अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए। आपको अभी मजा आ रहा है एमसीक्यू सॉल्व करने में बायोलॉजी में मेरे साथ, ठीक है, तो वहां पे भी मजा आएगा और एक बेहतरीन तजुर्बा आपके पास आ जाएगा, एक एक्सपीरियंस बेहतरीन आपके पास आ जाएगा। और आपको मालूम भी पड़ेगा कि बहुत बड़ी संख्या में, बहुत ही बड़ी तादाद में जब लोग अपीयर होते हैं एग्जाम में, तो आप कहाँ पे खड़े हो उसमें। ठीक है, और इन लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया गया है कि उसी दिन आपको रिजल्ट मिल जाने वाला है। ठीक है, तो मैं सही में बोलूंगा कि ये गणपत यूनिवर्सिटी वालों का जो प्रयास है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। ठीक है, और उन लोगों ने बहुत ही बढ़िया सी मेहनत की है और इसके लिए मैं आपको ये रेकमेंड करता हूँ कि ये सब जो है आपको देना ही देना चाहिए, क्योंकि और वो दोनों मीडियम में है, अपने गुजराती और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ठीक है, उसके बारे में ज्यादा सर बाद में बताएंगे। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं और अभी है सीक्रेट 2। सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो अबाउट द सीक्रेट 2? ये सीक्रेट 1 था। सीक्रेट 1 में मैंने बताया था कि एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना है। अभी हम दूसरे पड़ाव पे आ गए हैं, सीक्रेट 2। प्लीज राइट डाउन S2, राइट डाउन S2। या HP, आशीष, मेगा, मीरा, वंदित, हिया, अंजलि, वाह वाह, उर्वी, नैसर्गी, रोशन, साक्षी, काजल, ऋत्विक, यारी, शमल, वेरी गुड। सो आप, भावेश, बहुत बढ़िया, वंश। चलिए तो सीक्रेट 2 के लिए जाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया सीक्रेट है। ठीक है, पहले ही दिन से आपको इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है और इसको हम बोलते हैं जर्नलिज्म। So now you will be amazed कि सर हमको जर्नलिज्म कहाँ करना है, हम कहाँ जर्नल लिखने वाले हैं, हम कहाँ पत्रकार हैं, हम तो बस साइंस पढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए जर्नल का मतलब क्या होता है। जर्नल का मतलब रहता है स्पेशल डायरी। ठीक है, आपके पास एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक योर क्रिएटेड कलेक्शन ऑफ पेजेस। ठीक है, तो इसमें आप क्या क्या इंक्लूड करना चाहेंगे और क्या क्या इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। सो आर यू रेडी टू गो? जस्ट राइट डाउन आर रेडी टू गो। ओके, सो हियर यू कैन फाइंड आउट दैट हाउ टू क्रिएट द पर्सनल स्पेशल नोट्स। ठीक है, अगर आपको लगते हैं कि कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बेटा। अब तक 31 33 लोगों ने आंसर दे दिया है, रेडी टू गो। या वेरी गुड। सो यू नो होल्ड द एनर्जी इज अ वेरी गुड वन। ओके, and I was having a trust on all my biology students, and that's why I asked this Ganpat University people to keep this option on, and that's how we are enjoying. Thank you so much that they allow me to make this chat able. Okay, and thank you so much to all of you for having a very good active participation. Thank you so much. So this is what how to create the personal notes. कोई भी टॉपिक है कि पहला चीज होता है कि आप उसको रीड कीजिए। जो भी आपने रीड किया है उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन, फैक्ट और डेटा। तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ गया, अच्छा ठीक है, फिर उसको क्या करना है, फिर आपको उसका अर्थघटन करना है। अर्थघटन को बोलते हैं इंटरप्रेट। तो उसको अपने ओन वर्ड्स में आप उसको इंटरप्रेट कीजिए कि इसका अर्थघटन क्या है। ठीक है, फिर जो तीसरा चीज आता है उसको आप अपने राइटिंग में लिखिए। રાઇટ ડાઉન ધ કન્ક્લુઝન, એટલે તમે જે રીડ કર્યું પછી એનું અર્થઘટન કર્યું પછી એક તારણ ઉપર પહોંચ્યા, એ તારણ
એ તારણ જે છે એને કન્ક્લુઝન કહેવાય. So once you get the conclusion, just write down the conclusion of interpretation in your notes. Okay, तो देखो जो थियरी था उसमें ये चीज था कि आपको टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज को पकड़ के चलना था. अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसका पूरा लुफ्त लीजिए, पूरा मजा उठाइए, आपके ओन वर्ड्स में पूरे पर्सनल नोट्स रेडी कर दीजिए. ठीक है, अगर आपने खुद ने क्रिएट किए है ना तो आपको बहुत ही रिस्पेक्ट रहेगा और उसको बार बार पढ़ने का मन भी होगा. ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, ओके. फिर हम आगे बढ़ते हैं. आगे चीज है व्हाट टू रिफर जस्ट बिफोर वन डे ऑफ एग्जाम. तो ये चीज जो है ना वो काफी बच्चों को सताती है. ठीक है, काफी लोग मुझे भी फोन करते हैं गुजकेट या नीट के अगले वाले दिन कि सर जो आखिर में 2-3 दिन है उसमें क्या करना है. अरे भाई मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि हर एक का स्ट्रेंथ वीकनेस अलग अलग चीज होती है. ठीक है, तो वो नोट्स आपको अभी से बनानी है कि अगले दिन पे आपको क्या क्या रिपीट करना है, किस किस चीजों को एक बार देख के जाना है, कौन सी चीज रीड करके जाना है. ठीक है, तो अगले दिन आप क्या करने वाले हैं वो सिर्फ आप ही को मालूम होना चाहिए. लेकिन फिर भी मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ कुछ चीजें बता रहा हूँ. ठीक है, देखिए एक चीज ये हो सकती है कि आप लिस्ट टॉपिक का बना दीजिए, वैसे टॉपिक जो है कि जो आपको एक बार पढ़ने ही पढ़ते हैं. जैसे वो हो सकता है, अगर मैं हूं तो इकोलॉजी होता है वैसा कि इकोलॉजी में काफी कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं तो उसको आपको रेफर करना है. जो ये स्टैंडर्ड 12th का टॉपिक है पूरा इकोलॉजी वाला. ठीक है, फिर एक और चीज है स्टैंडर्ड 11th में मिनरल न्यूट्रिशन आते हैं, तो मिनरल न्यूट्रिशन भी आपको रीड करने हैं. ठीक है, तो वो आपको अगले दिन पे क्या करना है वो आप लिख लीजिए पहले से. ठीक है, उससे हम आगे बढ़ते हैं. सो आर यू एग्री विद मी? ये ऐसे कि जो टॉपिक्स रहते हैं उसको आपको लिखने चाहिए और उसका पूरा आपका लिस्ट होना चाहिए. ओके, यस, क्रिश इज मेगा, यू ऑल आर एग्री, थैंक यू सो मच. ओके, तो हम आगे बढ़ना चाहेंगे. आगे जो चीज है वो है क्या, लिस्ट ऑफ एमसीक्यू. देखिए ऐसे एमसीक्यू की लिस्ट बना दीजिए, एमसीक्यू लिखिए, उसके 4 ऑप्शन भी लिखिए. ठीक है, और उसका राइट आंसर भी लिख लीजिए. लिस्ट ऑफ एमसीक्यू, ऐसे एक एमसीक्यू का पूरा लिस्ट बनाइए जिसमें आपने मिस्टेक किया हो, यानी जिसके जो जो एमसीक्यू ने आपके साथ चीटिंग किया है उसको आप छोड़िए मत, उसको मार मरोड़ के आपके स्पेशल नोट्स में रख लीजिए. काफी, क्योंकि वो काफी हद तक अभी निर्बल हो जाएगा और वो आपको हरा नहीं पाएगा, दुर्बल हो जाएगा अगर आप उसको आपके इसमें पर्सनल नोट्स में रखते हैं तो. थैंक यू रिया, थैंक यू. तो लिस्ट ऑफ एमसीक्यूज व्हिच हैव न्यू इंफॉर्मेशन. तो कुछ कुछ एमसीक्यू होते हैं जिसमें आपको कुछ नया इंफॉर्मेशन मिला, जैसे ग्लूट 4 के बारे में अभी आपको नया इंफॉर्मेशन मिला तो उसको आप लिख लीजिए. ठीक है, अपने तरीके से लिख लीजिए. और कुछ अब आपको, आपने मिस्टेक नहीं किया है, इसमें से नया इंफॉर्मेशन नहीं निकला है, लेकिन आपको मालूम है कि यार ये बहुत ही बढ़िया सा एमसीक्यू था और आप उसको देखना चाहेंगे बार बार. ठीक है, तो उसको भी डाल दीजिए, जिसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ ट्विस्टेड एमसीक्यू. Are you agree with me? If you are agree with me, then I can go for the next slide. Okay, so let's go for the next slide. The next slide is about what? Now, this is very important one because this is a very short seminar and webinar, so that I cannot give you the whole idea. But this is also a very important point. That is what? Create the concept chart. आप खुद एक concept chart बनाइए, आप खुद बनाइए, है ना? Printed हैं, ट्यूशन में दिए गए हैं, कोचिंग क्लासेस में दिए गए हैं, नहीं, आप खुद बनाइए. आप खुद बनाइए एक कंसेप्ट चार्ट. ठीक है, बाय योरसेल्फ, एज मच एज पॉसिबल टॉपिक्स हो सके उतने ज्यादा टॉपिक्स के कंसेप्ट चार्ट बनाएंगे. इसका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि आप रिवाइज कर सकेंगे हर एक टॉपिक्स को, वेरी फास्ट आप उसको कर सकेंगे. Okay, Rutvik, so you are doing BSc Agriculture. So yeah, as possible topics, so that you can revise all topics very fast along with the effectiveness. तो effectiveness भी बहुत बढ़िया है आपकी. ठीक है, आप रेफर भी कर रहे हैं और फास्ट रेफर कर रहे हैं. कभी कभार ये होता है कि बहुत फास्ट रेफर करते हैं ना, फिर हम आगे तो पढ़ जाते हैं, फिर हम अपने आप को एक क्वेश्चन पूछते हैं, यार वो मैंने फास्ट रेफर कर दिया, फिर मैं या क्या ये याद कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. तो ऐसा होता है कभी कभी. तो फास्ट रेफर करना है, लेकिन पूरा एक्यूरेंसी रखना है, इफेक्टिवनेस रखना है. तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, और वो तरीका है क्या है?
वो बढ़िया सा तरीका है कि कंसेप्ट चार्ट जो है वो क्रिएट कीजिए। मैं आपको एग्जांपल देख रहा हूं कि देखिए टाइप्स ऑफ लीव्स के आप बना सकते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी है, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं, ठीक है। ओ सर थैंक यू सो मच। तो बीएससी एग्रीकल्चर के एडमिशन ओपन है गणपत यूनिवर्सिटी में, ठीक है, आप उनका कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ही ज्यादा लैंड है और वहां पे मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकल भी बहुत ही बढ़िया से हो सकते हैं। Okay, so types of leaves, types of inflorescence, type of phyllotaxy, then types of fruits, as well as types of pollination. This kind of a charts you can prepare by yourself. Here I am going to give you one example. Okay, ये गुजराती और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, जहां तक मैं समझता हूँ आपको ये दिख रहा है क्योंकि मेरे पास भी एक दूसरा स्क्रीन है जिसके ऊपर मैं देख सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ आपको कि टाइप्स ऑफ लीव्स, सादा पर्ण, सिंपल लीफ एंड sessile leaf, then simple petiolate leaf and sessile leaf. petiole है नहीं है, अच्छा ठीक है चलो। सिंपल लीफ जो है उसका जो लीफ लेमिना है वो कंटिन्यूस रहता है, ठीक है, और जो कंपाउंड लीफ है उसका कंटिन्यूस नहीं रहता है। उसके भी टाइप्स है, पिनेट कंपाउंड लीफ, पामेट कंपाउंड लीफ। पिनेट में है यूनिपिनेट, बाइपिनेट, मल्टीपिनेट, और पामेट कंपाउंड लीफ में है यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट एंड मल्टीफोलिएट, ठीक है। ऐसे कंसेप्ट चार्ट आप क्रिएट कर सकते हो अपने तरीके से, ठीक है। इससे आप जब भी रिवाइज करना है तो रिवाइज भी फटाफट हो जाएगा, एकदम स्पीड में हो जाएगा, और उसमें एग्जांपल और वो सब भी डालना मत भूलिए, ठीक है। ओके, उससे हम आगे बढ़ सकते हैं अभी कि जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, वो भी वहां पे लिख लीजिए, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट चार्ट पक्का बनाइएगा, वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्या आप रेडी है सीक्रेट 3 के लिए? यस, रविराज सिंह है जो उन्होंने ऐसे ही डाल दिया, मैंने पूछा ही नहीं, लेकिन उनको मालूम है कि सर बोलने वाले S3 लिखिए, और आप लोगों ने S3 लिख दिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर सच काइंड ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है। हिमांशी थैंक यू, काजल, आशीष थैंक यू सो मच, रिया थैंक यू। तो देखिए अभी सीक्रेट 3 के और हम जा रहे हैं, ठीक है। 4 सीक्रेट हैं, ये सीक्रेट 3 तक हम पहुंच गए हैं। ये बहुत ही छोटा सा है, लेकिन ये पूरा साइकोलॉजिकल है, ये बायोलॉजिकल नहीं है, पूरा साइकोलॉजिकल है। और ये जो सीक्रेट 3 है वो आप हर एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या मैथ्स हो, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में ये आप अप्लाई कर सकते हो। ड्यूरिंग एग्जाम व्हाट टू डू, देखिए जब भी आप एग्जाम के लिए जाते हैं तब आप एकदम ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होने चाहिए और आप डिप्रेस भी नहीं होने चाहिए। आप एक स्ट्रीमलाइन, या आप हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रल माइंडसेट के साथ जाना है। न्यूट्रल माइंडसेट, लेकिन बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, ठीक है। और आपको ग्रेडीनेस भी कंट्रोल करनी पड़ेगी, लालसा होगी, लालच होगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करूं, लेकिन देखते रहिएगा घड़ी अपना काम कर रही है और आपको भी अपना काम करते रहना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं सीक्रेट 3 की ओर। ओके, सो सीक्रेट 3 में आपको क्या करना है कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन क्या करना है। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ही लिए हैं क्योंकि मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, पूरा 35 मिनट्स का वीडियो है, ठीक है। वो मेरे YouTube चैनल पे है, उसका भी मैं इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, लेकिन अभी सुन लीजिए पहले, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि सर्कल कीजिए कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शन को जो आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन सही है, ठीक है। उसको आप कैसे करेंगे, सर्कल कैसे करेंगे? तो जो सर्कल है ना, उसको पहले जो बॉर्डर है उसके ऊपर आप यूं करेंगे और फिर बाहर से अंदर की तरफ आप जाते जाएंगे, ठीक है। अगर सर्कल करना है आपको तो आप कैसे करेंगे? बाहर से अंदर की तरफ आप जाते जाएंगे। जैसे कि मेरे पास अभी ये फुल स्केप है, ठीक है, इसके अंदर मैं बाहर से अंदर की तरफ जाता हूँ। तो ऐसे ऐसे आपको बढ़ते जाना है, और ध्यान रखना गलती से भी ये फेड नहीं होना चाहिए। अगर ये फेड हो गया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी और वो आपका सही में माना नहीं जाएगा, वो क्वेश्चन आपका ओमिट हो जाएगा। काफी बच्चे आते हैं कि सर हमने तो नीट से देख लिया था कि हमारे इतने मार्क्स आने ही वाले हैं, ओके, या तो पहले आप बॉर्डर करना है और बॉर्डर करने के बाद उसके अंदर जाना है। फेड नहीं होना चाहिए, पूरा करना है सर्कल ऐसे, क्योंकि ये मैन्युअल नहीं होता है, ये जो करना है वो मशीन इसको पढ़ता है। मशीन जो पढ़ता है उसमें कुछ भी फेड हो गया, फेड यानी क्या, सर्कल के से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये बेटा जान लो। क्योंकि पूरा मेहनत आपने 2 साल किया है, आपके ऊपर काफी कुछ तमन्नाएं हैं, सपने हैं, ख्वाब है, उसको रियलिटी में बदलना है।
हर एक छोटी सी भी गलती आपको अंजाम तक नहीं पहुंचा सकती। तो आपको अगर अपने डेस्टिनेशन पे, गोल पे जाना है तो आपको ये करना है। ये समझ में आ गया, क्योंकि ये सबसे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर ये समझ में आपको आ गया है तो अंडरस्टैंड के लिए यू लग दीजिए, यू लिख दीजिए कि अंडरस्टैंड कर दिया आपने ये पॉइंट। ठीक है, ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है। काफी कुछ बच्चे होते हैं वैसे कि सर मैंने इतने किए थे, मैंने सॉल्व भी कर लिए, जो सॉल्यूशन आते हैं उसमें से खुद नीट का जो सॉल्यूशन एनडीए वालों ने डाला था, सीबीएसई बोर्ड वालों ने डाला था, उसमें से भी मेरे को इतने आने ही चाहिए, फिर भी नहीं आए हैं। तो उसका एक काफी कुछ वजह हो सकती है, लेकिन एक वजह ये भी हो सकती है कि वो फेड हो गया था, बाहर निकल गया था, उसके ऊपर कुछ रखिए मत। वो ओएमआर शीट को आपको बहुत ही संभालना है, क्योंकि वही एक पेपर है जो आपको, आपके ख्वाबों को रियलिटी में बदल सकता है, हकीकत में बदल सकता है। ठीक है, फिर अगर आप सर्कल करने जाते हो तो सर्कल करने से पहले एक और चीज देख लीजिए कि जो क्वेश्चन नंबर है और आंसर नंबर है वो सेम टू सेम है या नहीं है। काफी कुछ बार ऐसा भी होता है, डोंट सर्कल द आंसर शीट इन एनी अदर आंसर नंबर। क्वेश्चन नंबर कोई और है और आंसर नंबर कोई और है, उसमें आप जल्दी से कर देते, क्योंकि 3 घंटे में आपको सब कुछ खत्म करना है। 45 मिनट 45 मिनट में आपको बायोलॉजी खत्म करना है, फिर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री खत्म करना है। तो जब वो प्रेशर है तो वो ऐसा लगता है कि आप प्रेशर कुकर के अंदर हो, जैसे मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरे को अभी प्रेशर है, फटाफट फटाफट सब कुछ आपको परोसना है। ठीक है, कुछ भी बाकी नहीं रखना है। ठीक है, तो मेरे को भी प्रेशर है, तो आपको भी प्रेशर रहेगा उस वक्त। ठीक है, अभी मेरी इम्तिहान चल रही है, फिर आपकी इम्तिहान चलेगी। तो जो एग्जाम है उसमें आपको यही है, प्रेशर रहता है, प्रेशर में कैसे काम करना है वही चीज है। और वो उसके लिए सबसे बढ़िया अगर मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं तो वो है महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, जो धोनी है वो प्रेशर में भी बढ़िया सा काम करते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट हमेशा न्यूट्रल रहता है और एक खेल दिली से वो काम करते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से करते हैं और वो अपना 100% देते हैं। बस वही जज्बा आपको लेके चलना है आगे। ओके, फिर रीचेक योर साइकोलॉजिकली अज्यूम्ड आंसर। कभी कभी होता है कि आपको मालूम है कि चलो राइजोबियम बैक्टीरिया आंसर सही है, लेकिन वो ऑप्शन दिया गया है आपको बी फॉर बॉम्बे, और जब आप आंसर टिक करने जाते हो, सर्कल आप कर देते हो सी में, ठीक है, तो क्या होगा, दिक्कत ही होने वाली है। वो तो आपका गया ही गया, उसने मार्क दिया नहीं, उस ऊपर से आपसे 1 मार्क ले लिया, तो आपको टोटल जो होगा वो नेगेटिव मार्किंग के साथ 5 मार्क्स का लॉस हो जाएगा। Recheck your psychologically assumed answer and its corresponding ABCD options before circling OMR. Okay, तो आंसर शीट जो है उसमें ये सब चीजें ध्यान रखनी है। इसके लिए मैं बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन बहुत ही लंबा है, ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है आपको। उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको पहले आप रीड करते हैं तो उसको छोटे छोटे पीसेस में रीड कीजिए। ठीक है, और उसका जो छोटा एक पीस है उसके ऊपर आप जाइए, उसका एक इंटरप्रिटेशन निकालिए कि इसका क्या मतलब रहा। ठीक है, उसका मतलब आपको मालूम पड़ गया, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर दूसरा फ्रेज, फिर तीसरा पीस जो है उसमें पढ़िए और वैसे ही आगे जाना है, लेकिन फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ठीक है, ओके। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम कम है, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, तो आप उसको फिलहाल अभी के लिए आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्किप करने में और एक चीज भी रिस्क रहता है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। चलो, और क्या है, ए एंड आर टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है। इसमें पूरा क्वेश्चन कभी पढ़ना नहीं है, नेवर रीड होल ए एंड आर। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड ओनली एंड ओनली assertion. Assertion એટલે વિધાન. Then after you have to decide about whether the assertion is right or wrong. ठीक है, अब आपको कैसे आप उसको चेक करेंगे, तो आप चेक करेंगे वो टेक्सुअल सेंटेंस है, असर्शन वाला है तो सही है, अगर नहीं दिया गया है तो आपको सोचना पड़ेगा लॉजिकली ये चीज जो है वो सही है या नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। तो 2 चीज रखनी है, पहले आप देख लीजिए कि टेक्सुअल सेंटेंस है, टेक्सुअल सेंटेंस है तो सोचने की जरूरत नहीं है, टेक्सुअल सेंटेंस नहीं है तो लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या करना है, स्टेप 2। नाउ ये बहुत ही बढ़िया सी चीज है, ये काफी लोग नहीं करते हैं। पूरा जो असर्शन है उसको भूल जाइए, भूल जाइए, भूल जाइए, भूल जाइए कि जैसे वो पूछा ही नहीं गया है आपको। ठीक है, क्योंकि आप बार बार असर्शन देखेंगे फिर रीजन देखेंगे, मजा नहीं आएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो असर्शन को भूल जाइए। स्टेप 3 जो है उसमें आप रीजन देखिए और उसका करेक्टनेस देखिए, ये साचू है कि खोटू है, इन द सेम वे टेक्सुअल सेंटेंस है या लॉजिकल है या नहीं है, और दोनों सही है तो उसके बीच में आप सो, ते, थी, बिकॉज,
કારણ કે એવા કન્જક્ટિવ મૂકીને you can check it that whether it is really yes or really it is your mind is being settled in that or not. Okay, फिर और एक चीज है, ये जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग डायग्राम विजुअलाइज करने हैं, ऑल लेबलिंग्स ऑर्डर लेबलिंग कहाँ पे है, कौन सी साइड पे है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. ऑल्सो विजुअलाइज कौन से पेज पे दिया गया है, वो डायग्राम कहाँ पे, वो राइट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, अगर राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे है, कहाँ पे डायग्राम है, उसमें बॉटम में क्या दिया गया है, कौन से बॉटम में है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे है, अपर मोस्ट है, मिडिल में है, बॉटम ऑफ पेज में है, कहाँ पे है, वो विजुअलाइज करना है. Sometimes even students know about the answer, then also they are not circling and think that later I will do the circle. This is very risky क्योंकि उसमें नंबर का प्रॉब्लम हो सकता है. यानी जो आप इंडेक्स नंबर, जो क्वेश्चन नंबर जो है उसमें आपका दिक्कत हो सकता है. और एक चीज है, when you skip any question, please keep the same number of answer. बेटा ये जो चीज है ना, एक जो सर्कल वाली चीज थी और ये वाली चीज है, इन दोनों को बहुत ही ध्यान रखिएगा क्योंकि आपकी खून पसीने की मेहनत है, आपकी भी मेहनत है, आपके पेरेंट्स की मेहनत है, टीचर्स की मेहनत है, उसको आप वैसे ही मत जाया कीजिए. ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए कि ये आपको करना है. व्हेन यू स्किप एनी क्वेश्चन, प्लीज स्किप सेम नंबर ऑफ आंसर इन द आंसर शीट. ठीक है, इन एनी स्ट्रेसफुल कंडीशन माइंड विल जस्ट गिव योर 100%. जब मैंने एग्जाम दिया है, बीएससी, एमएससी, बीएड, एमएड, जो एमबीए किया, पीएचडी किया, उसमें हर बार मैंने यही बोला है क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में है अपना 100% देना. और हर बार जो कृष्ण भगवान है उन्होंने बताया है वही चीज मैं दिमाग में लेके चलता हूँ. कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तेरा कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा और बिना कुछ कर्म किए तू कुछ नहीं पाएगा. भगवान गारंटी देते हैं कि तू कर्म कर, तेरा कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा, फिर आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है. और भगवान बोलते हैं सिर्फ सोचेगा तो कुछ नहीं पाएगा, बिना कुछ कर्म किए तो कुछ नहीं पाएगा. ठीक है, तो ये गीता सार है. आप लोग अगर अग्री हो, अंडरस्टैंड करते हो इसको, तो आप लिख लीजिए यू फॉर अंडरस्टैंडिंग. हाँ, देखिए मैं स्पिरिचुअल गुरु तो नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं मेरे तजुर्बे से बता सकता हूं कि ये एक चीज है जो आप पक्का कर सकते हैं, जो अपने लिए कर सकते हैं, जो अपनी तरफ से कर सकते हैं. ठीक है, ओके. और कोई भी सिचुएशन जिंदगी की हो, उसमें आपको बस यही याद रखना है. ठीक है, अभी हमारे पास आ रहा है कौन सा चीज है, ये है यूट्यूब चैनल. यूट्यूब चैनल क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने जो अभी आपको बताया एग्जाम के दौरान क्या करना है, वो तो सिर्फ मैंने एक ओवरऑल व्यू आपको दिया गया है. लेकिन अगर आपको देखना है वो पूरा वीडियो, तो उसमें प्लेलिस्ट है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए. ठहरिए, पेशेंस रखिए, जो गुजराती मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी है. फॉर डिटेल्स प्लीज विजिट अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर चिंतन शाह फॉर बायोलॉजी, प्लेलिस्ट फॉर इंग्लिश मीडियम. और जो प्लेलिस्ट में है, जहां पे आप जाएंगे तो इंग्लिश मीडियम के दोनों पार्ट आपको कंटिन्यूस मिल जाएंगे. ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इसी तरीके से चैनल का नाम लिखना है और उसके प्लेलिस्ट में जाना है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए. ठीक है, और अगर आप गुजराती मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये टॉपिक जो नाम है वो है सक्सेस इन नीट इन गुजकेट पार्ट 1 एंड पार्ट 2. ओके, तो इसीलिए ये तैयार किया गया है क्योंकि सिर्फ यही 35 या 40 मिनट का तो वीडियो हो जाता है. 35 मिनट का है ये वीडियो. और गुजराती मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो देख लीजिए. ये बेटा आप ये है ना, पहले आइकॉन देख लीजिए, आइकॉन कौन से, थंबनेल जो है वो आप देख लीजिए, उससे आपको मालूम पड़ेगा और आपको बहुत ही इजी रहेगा वो ढूंढने में. ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ गुजराती मीडियम वालों के बच्चों के लिए. और जो गुजराती मीडियम वाले बच्चे हैं उनको देखना है ये. फॉर मोर डिटेल्स प्लीज विजिट अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर चिंतन शाह फॉर बायोलॉजी, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम है और लेकिन उसमें भी हमने काफी कुछ खत्म कर दिया है. ओके, तो अभी आ रहा है क्या, वीडियो फॉर गुजराती मीडियम. ओके, सो प्लीज वीडियो जो गुजराती मीडियम है उसके लिए ये आपको देखना है. वो 35 मिनट यानी 34 मिनट्स एंड 59 सेकंड का वीडियो है. ठीक है, वो आपको देखना है. और वो ये लॉकडाउन के बाद ही मैंने सब किया गया है क्योंकि मेरे बच्चों से भी मेरे को मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो उनके लिए ये सब डिटेल में ड्यूरिंग एग्जाम क्या करना है उसी के लिए 35 मिनट का वीडियो है. आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको मोटिवेशन और
काफी कुछ अच्छी चीजें जानने को मिलेगी, क्योंकि मैं मेरे लाइफ लर्निंग लेसन्स उसी में डालता हूँ। ठीक है, आगे जाते हैं हम। और अभी जो है वो क्या है, ये सक्सेस इन नीट एंड गुजकेट के लिए वीडियो था, और अभी आ रहा है क्या, सीक्रेट 4। आर यू रेडी टू गो फॉर सीक्रेट 4? just shout about it. Yes, S4, 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 S4. लास्ट चीज है सीक्रेट 4। ठीक है, चौथा सीक्रेट कौन सा है, सोचिए। काफी कुछ हो गया यार, प्रिपरेशन कैसे करना है, पर्सनल नोट्स कैसे बनाए, वो सेकंड हो गया। थर्ड चीज आपके सामने आ गई है, वो है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन क्या करना है। अभी क्या रहेगा, अभी कुछ है ही नहीं कहने को, है क्या है देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीक्रेट 4 जो है वो आपको कल मैं बताऊंगा पैनल डिस्कशन में। तो आप सब लोगों को पैनल डिस्कशन में आना ही आना है। डॉक्टर अमित परीख जो है उन्होंने मेरे को और ये बताया गया था कि सर सब कुछ नहीं डाल देना है, कुछ बाकी भी रखना है, बच्चों को आना चाहिए पैनल डिस्कशन में, तभी मजा आएगा। तो मैंने उनका इंस्ट्रक्शन, मुझे भी बहुत उनका सुझाव बढ़िया सा लगा। तो सीक्रेट 4 में आपको बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है, वो अब कल देखेंगे। कल पैनल डिस्कशन में सब लोग आ रहे हैं। अभी ये मेरे एक्सप्लो फंडा जो क्लासेस है उसका चीज है, आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड 8, 9, 10 मैथ्स और साइंस हम करते हैं। एक्सप्लो फंडा ट्रेडमार्क है, एक्सप्लोर फंडामेंट्स ये नाम है। डॉक्टर चिंतन साइन टीम है, 11, 12 बायोलॉजी, नीट सब पाल्डी सैटेलाइट नारायणपुरा एरिया में सब है। ये दोनों मेरे नंबर हैं, वो भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे मेरा सब कुछ समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत ही बढ़िया तरीके से सुना और मुझे बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन दिया, एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया। और मैं सही में एक और बार जाना चाहूंगा और थैंक यू करना चाहूंगा मेरे जो गणपत यूनिवर्सिटी वाले पूरे टीम हैं उनको, ठीक है, कि उन्होंने मुझे ये पूरा, आप अभी आप फीडबैक दे सकते हैं कि आपने एंजॉय किया हो, जितने भी लोगों ने थैंक यू बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज है। अगर आप मुझे अभी देख बोल सकते हैं कि आपने सही में एंजॉय किया है, तो आप इसमें लिख दीजिए एंजॉयड, आप लिख सकते हैं एंजॉयड, है ना। तो अपने जो चैट बॉक्स है उसमें एंजॉयड लिख दीजिए। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे ये बहुत ही बेहतरीन सी अपॉर्चुनिटी दी। और अभी डॉक्टर परीख सर आपको बताएंगे कि क्या है क्या नहीं और क्या आपको करना है आगे। सर ओवर टू यू, डॉक्टर अमित परीख सर। Thank you, Dr. Chintan Shah, sir. Today it is really interesting lecture, and you made it live and you made it interactive. Particularly, you have used chat window very effectively. All the participants have actively participated and involved in the chat box throughout the session. I was observing, so it was really a nice interactive session. You have disclosed all the secrets to get the success in NEET and GUJCET kind of examinations. Flowcharts, diagrams, tables, everything you have discussed very nicely, effectively. And I'm sure that with your secrets and the way you have delivered, all the participants will be able to improve their score in NEET examination. So I also enjoyed your session. Thank you very much, Chintan sir. And yes, you can. So sir, आप तो मैथ्स से हैं, आपका बैकग्राउंड मैथ्स वाला है, और फिर भी आपने एंजॉय किया, ये सबसे बढ़िया। ये तो ये ऑस्कर अवार्ड है कि मैथ्स वाले जब बोलते हैं कि बायोलॉजी को एंजॉय किया, तो ये मेरे लिए ऑस्कर अवार्ड हो गया है सर। तो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे सर ये सर। Exactly. Thank you so much. For mathematicians, biology is actually I studied biology in 12th standard long back. हाँ, and हमारे then after 150 मार्क का मैथ्स पढ़ा है, आपने 100 मार्क का बायोलॉजी पढ़ा है, तो वो हमको तो ऐसा चॉइस नहीं था। ये नई जनरेशन है, ये काफी फॉर्चुनेट है, लकी है कि वो अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं था, लेकिन अच्छा था, जो था वो अच्छा था। Yes, really it is very beneficial to all the students, and I would like to convey to all the students that all the subjective 4 sessions are over today, completed, and you will be able to get the recording of all the sessions and the presentations of the experts from our website, that is www.mubiob.ac.in.
or you can simply write Mehsana Urban Institute of Sciences in your Google and you will get the link. So on our website, we are going to upload all these things from tomorrow onwards. You will be able to access. सर एक सुझाव है मेरे पास. Another, just a minute, Chintan sir. Another important message I would like to convey, that all the participants have registered for mock test. Various mock tests. We have prepared all the mock tests in Gujarati and English. And in whatever the mock test you have registered, we have already sent the link through email. So in email, we have sent you the link to join this webinar. On the same email, there is a link to connect for the mock test also. And that link will be activated exactly at 9:55 on 30th. So connect to that link on 30th May at exactly 9:55, and you will be able to appear in the mock test. So don't forget to attend the mock test. It is very interesting, and there are a lot of benefits also. Those who want to confirm their admission in Ganpati University, there is a scholarship scheme also. We will talk more about scholarship scheme in our panel discussion session, so that others also can know about it. And wish you all the best for the mock test and panel discussion. Thank you all. Thank you very much. Yes, Chintan sir, you want to say something? Sir, for the Institute video, sir, I suggest one thing. Institute video we can share with that. Institute video. Yeah, do you have right now, Kavit? Yes, sir. Yes. So all the participants just be with us for 2-3 minutes. One video would like Kavit Mehta sir would like to share with you. Wow. Kavit, Yes, sir. you can share your screen and play the video. This is regarding our Science Institute, where we are offering BSc program in microbiology, biotechnology, chemistry, mathematics, physics. Hello. Yes, what happened, Kavit? Wait, sir. Till that, Chintan sir, you want to say something? Yeah, I just want to make a note that everybody is active on the chat. So it's better if you can write down, we can write down the Ganpati University website on the chat so that they can copy, they can take screenshot also, or we have a link of the mock test also. We can make it right now available on the chat box from our team. That was the only. This is the website which I am writing on the chat box, www.mubiob.ac.in. From this website, this is our college website from which you will be able to download all the material regarding our webinar and presentations. And for admission, there is another website that I am mentioning. Curious about knowing the basics of living organisms? Microbiology has all your answers. Do you hear the call of flora? The chance to study the modern botany is all waiting for you. The study of the chemistry is basically the theory of everything. We are not able to Follow your imagination to the brilliant ideas which will eventually formulate your future. Dive into the unique rank of mathematics and be the gateway to solve the difficulties that's bugging the world for years. No, not visible. You stop it. Is it visible? Practically hands-on and logic. No, it's just only a list. Video is not visible. Yeah. Only voice is coming. Video is not visible. Kavit, why it is happening? What? Wait, sir. I think. So, sir, this is a very good thing you have done, that you just made everything available on the chat box so that the students go through it and can look on that and can have even they can have their they can take the screenshot also, so that they make sure
that they are not Yes. losing the website link and the mock test link. And I had also just suggest them to go through the mock test during my lecture. Also, I have said, I told my all the students also already that, and definitely we will be having a very good number of students so that they will find out that the competition is very good, and anyhow it is going to be benefit. Yes, yes. Thank you, Video sir. is visible, sir, now? No. No, Hello. When you open share screen, there are two on both the options, Yes. which is below the screen screen share. When you want to share screen, there Yes, is sir. a share computer sound and optimize screen sharing for video clip. You click on both Okay. buttons Okay. Yes. and then you share. Yes. Then Yes. only it is visible. Yes. now I am also very greedy about this video because Now it's be visible, sir? Now you Now- play it. Play first. Yeah. Plate. Okay. Now. No. audio video both enable. Only audio is coming, not video, Kavit. કવિ સર ત્યાંથી હું તો સ્ટોપ કરવા હું અહીંથી કરું છું સર. Okay. हाँ, तो मैं कर- દીપક ભાઈ તમે પ્લીઝ કરો. હા હું કરું છું. હા, હા. કવિ સર Because now ત્યાંથી I'm stop- Okay. Uh-huh. now I'm very free because they are talking about microbiology. That's my subject. That's my life. That's my religion. Biology is my religion. Yeah. So please just make it possible anyhow. Thank you. સર વિડિયો દેખાય છે? हाँ, देखा है. Wow. Thank you so much. Curious about knowing the basics of living organisms? Microbiology has all your answers. Do you hear the call of flora? The chance to study the modern botany is all waiting for you. The study of the chemistry is basically the theory of everything. Expand your imagination to the brilliant ideas which will eventually formulate your future. Dive into the unique realm of mathematics and be the gateway to solve the difficulties that's bugging the world for years. Technology empowers humans, where biotechnology transforms them. Be the transformation you want to bring in the world. Ever wondered how actual physics apply to the world we live in? Come to the home of physics and know how. Ganpat University, Mehsana Urban Institute of Sciences empowers you to convert your passion and aspirations. As a result, you will be ahead of others in knowledge, practical hands-on, and logic. The modern infrastructure of Ganpat University, with all the latest instruments in labs, enhance your overall learning experience while you are being prepared for your exciting career. The experienced teachers lay a strong foundation of domain knowledge within your intellect and make it easy to learn a variety of topics. From quantum mechanics to the latest inventions and discoveries that are making our world a better place to live. Join the Ganpat University, Mehsana Urban Institute of Sciences to pursue your undergraduate and postgraduate programs in physics, microbiology, botany, biotechnology, mathematics, chemistry, etc. The institute also offers integrated dual degree programs. Do not wait before it's too late. Take a first step towards shaping your satisfying and successful career by joining Ganpat University, Mehsana Urban Institute of Sciences. Ganpat University is a forward-thinking and socially responsible university where students meet success. This is about our institute video. So all of you are
requested to visit the campus as and when our lockdown is over. And do visit before you finalize your admission anywhere. Thank you all. Thank you, Chintan sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. It was a pleasure to be with you, and really you enjoyed the session. That's the Oscar award for me. And so many students have also said that they enjoyed the session. So I feel light now, you know. Already I'm obese, but then also I'm feeling light. And it was a super video, sir. I want to clap for this. It was really a super video. Thank you. And thank you. thank you so much, sir. Thanks a lot, sir. See you tomorrow. Yeah. Sure, sir.